Good afternoon, students. Myself Desh Sharma, your English teacher, and today in this video I am going to take your chapter 9. The name of the chapter is Madam Rides the Bus. एक मैडम की बस की राइड. Now who is madam here? Madam here is a 8 years old girl. 8 years old girl and whose name is Valli. इसका नाम क्या है? वल्ली. So let's start our chapter. तो ये जो वल्ली है ये अपने घर के दरवाजे पे खड़ी होके बाहर का सीन देखती रहती है और ये उसका फेवरेट पास टाइम है. So let's start our chapter. There was a girl named Valli Mai who was called Valli for short. She was 8 years old and was very curious about things. वो बहुत curious type की थी. Her favorite pastime was standing in the front of doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. और वो पूरा दिन यही करती रहती थी. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games. Elaborate क्या होता है? Explained होता है. यानी कि और बच्चे जो गेम खेलते थे, जो मज़ा और बच्चों को आता था गेम्स के अंदर, वही मज़ा वल्ली को आता था बाहर के सीन देखने पे. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. Fascinating, attractive. सबसे ज़्यादा जो भी मुझे अट्रैक्ट करती थी वो थी वो बस जो उसके गांव से नीर के गांव में जाती थी. Passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. जाती थी और फिर वापस आती थी. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. हर बार उसमें नए पैसेंजर होते थे और वही वल्ली के लिए entertainment का source है. Day after day, she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and flew there gradually, slowly. फिर धीरे-धीरे उसके अंदर क्या विश हुई कि वो भी उस बस के अंदर ट्रैवल कर रही थी. She wanted to ride in that bus. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Overwhelming, very strong. जैसे अब उसके मन में केवल यही डिजायर थी. क्या डिजायर थी? ये बस की राइड करें. Valli would stare wistfully at the people who were wistfully looking at her. यानी कि काफी ज़्यादा विश कर रही. अब उसकी क्या विश थी कि वो बस के अंदर बैठे. Street corner, their faces would kindle in her longing dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud shout. कि ऐसे कोई भी बच्चा उसको एक्सप्लेन करता तो उसे जेलसी होती. Neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression or disapproval. Slang expression, informal words often used within the close group. जैसे जो हमारे फ्रेंड होते हैं उनके साथ हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो. Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. कि जो भी पर्सन विजिट करते थे वो उनसे क्वेश्चन पुट अप करती थी. अब क्या क्वेश्चन पुट अप करती थी? This way she picked up various small details about the bus journey. कि बस डिटेल बस के बारे में डिटेल्स वो कलेक्ट करने की कोशिश करती थी. फिर उसने क्या क्या कलेक्ट किया कि 6 माइल की डिस्टेंस है, फेयर है 30 पैसे है, जो बहुत कम थे उस टाइम पे. She heard one well-dressed man say, but who scarcely saw that much money from one month to the next. It seemed a fortune.
लेकिन वल्ली जो थी वो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसके लिए वो पैसे बहुत ज़्यादा थे। ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो उसके माइंड में उसने क्या प्लान किया कि वो उसी बस से जाएगी और उसी बस से फिर वापस आ जाएगी। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back by about 2:45। तो ये सारी उसकी प्लानिंग थी कि वो इतने बजे जाएगी तो इतने बजे वापसी आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। तो उसने सारी प्लानिंग की। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting। कि बस जाने ही वाली थी, तभी वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई दी, Stop the bus, stop the bus। And a tiny hand was raised commandingly। एक छोटा सा हाथ उठा वहाँ से। The bus slowed down to a crawl। यानी कि जो बस की स्पीड थी वो कम कर दी गई। And the conductor said, Oh really? You don't? सॉरी बेटा, एक लाइन है जो हमारी लेफ्ट हो गई है। द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सैड हरी देन। तो तुम जल्दी करो। हरी देन टेल हूएवर इट इज़ टू कम क्विकली। कि जो कोई तुम्हारे साथ है उसे कहो कि जल्दी आ जाए। इट्स मी साउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। कि मुझे ही इसके ऊपर चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सैड, ओ रियली यू डोंट से सो। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सैड वल्ली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हेयर इज़ माई मनी। तो अभी भी बाहर ही खड़ी कहती है कि मुझे ही जाना है और ये रहे मेरे पैसे। तो कुछ कॉइन्स वो शो करती है कंडक्टर को। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। की पहले बस पे तो आ जाओ, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्ड हर अप। कि उसे हाथ देके वो खड़ा करते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तो लड़की क्या कहती है कि आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी। द कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉट। जो कंडक्टर था वो काफ़ी खुश मिजाज आदमी था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सैड, हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। कि जो सामने वाली सीट है आप वहाँ पे जाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। तो काफ़ी वो मजाकिया है, तो बार बार वल्ली को वो मैडम कह रहा है कि मैडम के लिए रास्ता बनाओ। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देर वॉज स्लैक टाइम मीन्स ए टाइम वेयर देयर इज नॉट मच वर्क। यानी कि जो फुर्सत का समय होता है वो। अब क्या होता है कि जो दोपहर का समय होता है उसमें हम काफ़ी आराम करते हैं। तो ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। तो जब सारे हंसने लग गए तो वल्ली थोड़ा शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। तो खाली सीट के ऊपर बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। तो मैडम क्या हम स्टार्ट करें? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोयर। तो उसने 2 बार सीटी बजाई और फिर बस स्टार्ट हो गई। इट वॉज ए न्यू बस। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स along the sides. Inside the overhead bars shone like silver। ये जो बस थी बिल्कुल नई थी, ग्रीन स्ट्रैप्स में उसके बाहर लिखा गया था और जो बार्स थी ऊपर, ये जो यहाँ पे जो बार्स लगी हुई है ये भी बिल्कुल नई थी, सिल्वर की तरह वो शाइन कर रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। कि वहाँ पर एक क्लॉक थी। सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, काफ़ी आरामदायक सीट थी। वल्ली रिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। रिवॉर्ड मीन्स, रिवॉर्ड क्या होता है? स्वेलो होता है, निगलना। अब यहाँ पे वो जो भी कुछ चीज़ देख रही थी उसको बहुत, शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग, बहुत ध्यान से देख रही थी। केयरफुली, वॉचिंग केयरफुली, तो वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही थी।
But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. तो जब वो बाहर देख रही थी तो उसके सामने थोड़ी चीज़ आगे आ गई थी. So she stood up on the seat. तो इसलिए वो खड़ी हो गई और फिर उसके ऊपर से झांक कर देख रही, क्योंकि वो छोटी थी कि ये जो एरिया होता है, जैसे देखो खिड़की से नीचे का जो एरिया, यहाँ से अगर वो देखेगी तो उसको दिख नहीं सकता था ना, तो वो खड़ी हो जाती है और फिर यहाँ से बाहर देखती है. द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल. द रोड वॉज वेरी नैरो. रोड था बहुत नैरो था. ऑन वन साइड देर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन. कि एक साइड कैनल थी, दूसरी साइड पाम ट्रीज थे, ग्रास लैंड थे, घास के मैदान थे, एंड द ब्लू स्काई. ऑन द अदर वॉज ए डीप डिच. गहरी खाई थी. एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कि जहाँ तक आंखें देख सकती थी सब कुछ ग्रीन था, ग्रीन फील्ड्स थे. Oh, it was all so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Startled, surprised, shocked. कि अचानक उसके एक आवाज़ सुनाई दी और फिर वो शॉक्ड हो गई. Listen, child, said the voice. You should not stand like this. Sit down. तो कोई उसे बैठा देता है. Sitting down. She looked to see who had spoken. वो ये देखना चाहती थी कि वो आवाज़ किसकी थी. It was an elderly woman who had honestly been concerned for her. तो उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो उसके लिए कंसर्न थी, वो worried थी, but she was not annoyed by his attention. Annoyed means worried, परेशान. There is nobody who is a child. तो वल्ली क्या कहती है कि यहाँ ऐसा कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि वो खुद को बड़ा मानती थी. She said haughtily. Haughtily means proudly. गर्व के साथ कहती है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है. द कंडक्टर चिम्ड इन. कि कंडक्टर फिर बोला, उनके बीच में बोला, ओ सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम. ये तो बहुत बड़ी मैडम है. डू यू थिंक ए मेयर गर्ल वुड कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन. कि क्या आप सोचते हो कि अकेली लड़की आएगी, अपना किराया देगी और सिटी तक ट्रैवल करेगी. वेली शॉट एन एंग्री ग्लैंस, मतलब कि गुस्से से देखना, at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. तो वल्ली क्या कहती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ और याद रखो कि आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है. I will remember. The conductor said, mimicking her tone. Mimicking, copying. कि जैसे वल्ली ने उसके सामने सेंटेंस बोला है उसी तरह से कंडक्टर भी बोलता है. And gradually Valley too joined in the laughter. और फिर वल्ली भी हंसने लग जाती है. द कंडक्टर पहुंच ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. तो वल्ली को क्या कहता है कि तुम आराम से बैठ जाओ. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट. तो फिर से इसका मजाक करता है और कहता है कि जब तुमने पैसे दिए हैं तो तुम आराम से बैठ जाओ. बिकॉज आई वॉन्ट टू, कि मुझे खड़ा होना है. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. तो कंडक्टर क्या कहता है कि यदि तुम केयरफुल नहीं रही और बस एकदम से टर्न करेगी तो तुम गिर जाओगे और तुम्हारे बम्प हो जाएगा, तुम्हारे माथे पे स्वेलिंग आ सकती है. That is why we want you to sit down, child. I am not a child, I'll tell you. She said irritably. Irritably क्या होता है? चिढ़कर, कि वो काफ़ी उससे चिढ़ पैदा होने लग गई. आई एम 8 years old. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी. 8 years, माई. द बस स्टॉप्ड. सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट. वैली फाइनली सेट डाउन. तो जब बस स्टॉप आता है तो बस रुकती है, फिर से नए पैसेंजर्स आ जाते हैं. कंडक्टर टिकट वगैरह देता है और वैली फिर सीट पे बैठ जाती है कि कहीं कोई और उसकी सीट पे ना बैठ जाए. एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर. आर यू ऑल अलोन डियर. तो वल्ली से पूछी क्या तुम अकेली हो. सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. रिपल्सिव का थिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कि नापसंद भी, जो देख के अच्छा ना लगे. तो उसे वो लेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लॉस.
कि उसके जो कान के छेद थे वो काफ़ी बड़े थे और उसकी जो ईयरिंग थी वो भी अगली थी, सुंदर नहीं थी. एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट एंड द वुमन वाज चीविंग and see the bitter juice that was threatening to spill over his lips at any moment. तो जो लेडी थी वो बीटल लीव्स को, पान के पत्तों को चबा रही थी और लग रहा था कि किसी भी टाइम उसके मुंह से वो जूस नीचे गिर सकता था. ओह, who would be sociable with such a person? तो क्या कहती है वल्ली, क्या सोचती है कि ऐसे पर्सन के साथ कौन सोशेबल होगा, कौन उसके साथ सोशल बनेगा. Yes, I'm traveling alone, she answered curtly, showing displeasure. Pleasure खुशी होता है, displeasure थोड़ा सा मतलब कि वो हैप्पी शो नहीं कर रही थी. And I have got a ticket too. तो कहती है कि मैं अकेली जा रही हूँ और मेरे पास खुद की टिकट भी है. Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट. तो कंडक्टर कहता है कि हाँ इसने 30 पैसे की टिकट ली है. Oh, why don't you mind your own business, said Valli, but she laughed all the same and the conductor laughed too. तो बार बार में वो हंसने लग जाते हैं. But the old woman went on with her drivel silly nonsense, यानी कि बेकार की बातें वो करती रहती है. Is it proper for such a young person to travel alone? कि क्या बच्ची को अकेले ट्रैवल करना चाहिए? क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम यहाँ पे हो, या तुम्हें पता है तुम्हें किस घर पे जाना है, कौन सी गली में जाना है, कौन सा हाउस नंबर है. तो वल्ली काफ़ी परेशान हो जाती है. यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट. कि वो विंडो की साइड अपना फेस कर लेती है और वहाँ पे देखना स्टार्ट कर देती है. हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेंसटेकिंग elaborate plans that she had to make for it. तो कहती है पेंसटेकिंग, कितने जो पेनफुल थे वो पेनफुल, कि उसने कितने पेनफुल और केयरफुल डिसीजन लिए हैं. उसने जो प्लान बनाया 30 पैसे सेव करने का, वो कैसे बनाया बता रखा है. रजिस्टरिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे. कि उसने अपनी हर इच्छा को दबाया है. वो चाहे कोई चीज़ खरीदने की हो, जो खिलौने खरीदने हो, बैलून हो, या कोई भी चीज़ जो उसे पसंद हो, वो उसने नहीं खरीदी और उसने पैसे बचाए. हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर. तो देखिए सबसे मुश्किल दिन उसके लिए कौन सा था, जब गांव में मेला लगा हुआ था और उसे मैरी गो राउंड पे झूलना था. उसके पास पैसे भी थे, वो झूल भी सकती थी, लेकिन वो नहीं झूली क्योंकि उसे अपने पैसे बचाने थे. आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज नाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस. कि पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि वो पैसे कैसे बचाए, और जब उसने पैसे बचा लिए तो अगली प्रॉब्लम क्या थी, वो घर से बाहर कैसे निकले. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी. लेकिन उसने वो भी मैनेज कर लिया. कैसे किया कि जब उसकी मदर नैप लेती थी, एक शॉर्ट स्लीप होता है, छोटी सी झपकी, जब दोपहर का भी जब काम हो जाता था तो उसकी मदर सो जाती थी. 1 से 4 बजे का जो टाइम होता था उसमें सो जाती थी, और उसी टाइम का फ़ायदा वल्ली ने उठाया. और सम टाइम इवन वेंचर्ड out into the village. Today these same hour could be used for the first excursion out the village. तो उसने क्या हिम्मत जुटाई कि आज वो वहाँ पर जाएगी, बस में जाएगी. The bus rolled on now cutting across a bare landscape. कि अब जो खाली जगह थी वहाँ पे बस आ गई. Now rushing through a tiny hamlet or passed on odd wayside shop. कि वो दुकानों के पास से जा रही थी. समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल. गोबलिंग अप यानी कि टकरा जाना, स्ट्राइकिंग अप. लगता कि जैसे वो टकरा जाएगी. पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, कि जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, पैदल क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे लगा कि एकदम से ये किसी में टकरा जाएगी. बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली. बट सब कुछ स्मूथली हो गया. Leaving all obstacles safely behind. Trees came running
towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. कि जब हम बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं हमें लगता है कि पेड़ भी हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो यही चीज़ वल्ली को लगी, कुछ लगा कि पेड़ भी उसके साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बस उन पेड़ों के पास पहुंच जाती तो वो भी रुक जाते। तो यही बातें उसे फील हो रही थी। सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। ग्ली क्या होता है? हैप्पीनेस, कि उसने हैप्पीनेस के साथ क्लैप किया। A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl. कि एक गाय अपनी पूंछ को उठा के बिल्कुल बस के सामने आ गई और ये गाय इधर उधर ऐसे भाग रही थी, और जब हॉर्न की आवाज़ तेज होती, देखिए हॉर्न की आवाज़, तो ये और डर जाती और फिर और जल्दी से भागती, लेकिन हमेशा वो बस के आगे ही भागती थी। Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. कि हंस हंस के उसकी आंखों में आंसू आने लग गए। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. तो कंडक्टर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा हंस चुकी हो, better save some for tomorrow, कल के लिए भी कुछ बचा लो। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. कि रेल का जो ट्रैक था वो आ जाता वहाँ पे। A speck of a train could be seen in the distance. speck यानी कि पूरा ग्रुप, झुंड, बहुत सारी ट्रेन वहाँ पे देखी जा सकती थी। Growing bigger and bigger as it drew near. और जैसे जैसे वो पास हो रही थी उनको ट्रेन वो और बड़ी दिख रही थी। Then it rushed past the crossing gate when a tremendous roar and rattle. कि वहाँ से जो ट्रेन थी वो गई, उसकी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था और उसने पूरी बस को शेक कर दिया। Then the bus went on and passed the train station. फिर बस चली गई, उसने ट्रेन वाले स्टेशन को पास कर लिया। From there it traveled a busy, well-laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. कि अब वो खुली सड़क पे आ गई। Such big, bright-looking shops, what glittering displays of clothes. ये सुंदर सुंदर कपड़े वहाँ पे थे और भी सुंदर सुंदर सामान था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। Struck dumb with wonder, Valley gaped at everything. कि वैली बिल्कुल सरप्राइज्ड होके हर चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही थी। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? कि तुम उतरोगी नहीं? This is as far as your 30 पैसे takes you. कि तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहीं तक लेके आ सकते थे। No, I am going back on the same bus. She took another 30 पैसे। अब पता है कि वो समझदार है, उसने और 30 पैसे निकाले और अपनी दूसरी टिकट ले ली। Why is something the matter? No, nothing is the matter. तो कंडक्टर भी थोड़ा हैरान होता है कि अभी तो आई थी और अभी वापस जा रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहती है I just felt like having a bus ride, that's all. कि मैं बस ट्रैवल करना चाहती थी इसलिए आई हूँ। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? तो कंडक्टर कहता है कि जब तुम आई गई तो बाहर का भी देख लो। Don't you want to? All by myself. Oh, I would be much too afraid. मैं अकेली देखूँ, मैं अकेली तो डर जाऊँगी। Greatly amused by the girl's way of speaking. तो लड़की ने जिस तरह से जवाब दिया कंडक्टर को बहुत हंसी आई। But you were not afraid to come in the bus. कि तुम बस में आने से तो नहीं डरी। Nothing to be afraid of about that. She answered. तो उसने कहा कि इसमें डर क्या था। Why not go to that stall over there and have something to drink? तो कंडक्टर कहता है कि तुम जाओ और कुछ ड्रिंक के लिए ले लो, लेकिन वल्ली उस चीज़ के लिए मना कर देती कि मैं ड्रिंक नहीं लूँगी। No, I don't have enough money. Just give me my ticket, that's all. तो कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मेरी टिकट दे दो बस। It will be my treat and no, not cost you anything. तो कहते हैं कि तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो वो बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो कंडक्टर भी अपने कंधों को थोड़ा सा हिलाता है, श्रग्ड मीन्स कंधों को थोड़ा ऊपर करना। एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम, और जब तक दूसरे पैसेंजर नहीं आ जाते हैं वो दोनों वहाँ पे वेट करते हैं। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू?
तो अब कंडक्टर कहता है कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगी? नो नो विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं मुझे कोई नहीं देखेगा, और बस फिर वहाँ से स्टार्ट होके चल पड़ती है। वैली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, ग्रीटेड वेलकम्ड, कि वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई और जो भी चीज़ रास्ते में आ रही वो उनका वेलकम कर रही थी। बट सडनली सी सा यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन वो यंग काउ को देखती कि जो डेड थी, इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और क्योंकि उस एनिमल की टक्कर हो गई थी और वहाँ पे वो मर गया था। Isn't that same cow that ran in front of the bus on our trip to town? तो वो उस गाय को पहचान लेते कहते ये तो वही सेम काऊ है ना। द कंडक्टर नोडिड, उन्होंने भी हाँ में सिर हिलाया। सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, तो यहाँ पे इस पैसे में बताया कि पूरी तरह से वो सैड हो जाती है कि ये क्या बात हुई, ये ऐसे कैसे हो गया, वो गाय थी वो कितना भाग रही थी। तो अब वो जब लाइफ की रियलिटी देखती है कि जब कोई चीज़ मर जाती है तो कैसे लाइफलेस हो जाती है। जो गाय थी उसकी आंखें स्टेयर कर रही थी, लाइफलेस हो गई थी बिल्कुल, वहाँ पे हर जगह पे ब्लड था। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, ट्रबल्ड हर, बार बार उसे उसी डेड काउ की याद आ रही थी। डैम्पनिंग हर, डैम्पनिंग मीन्स रिड्यूसिंग, और वो जो उसका इंथुजियाज्म था, जो उसका जोश था, उत्साह था, उसको ठंडा कर रही थी। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, ग्लू क्या होता है, चिपक जाना। वो अपनी सीट पे बैठे रही, उसने बाहर नहीं देखा, और वो अपने गांव में 340 पर पहुंच गई। Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." उतर कहते कि मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी आपसे दोबारा मिलूंगी। Okay, madam, he answered her, smiling. Whenever you feel like a bus ride, come on and join us, and don't forget to bring your fare. तो कहते हैं कि ठीक है, जब भी तुम्हारा मन करे तुम आना और अपना फेयर जरूर ले आना। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. वो फिर से चली जाती है अपने घर की साइड। When she entered her house, जब वो घर में एंट्री करती है तो वहाँ पे उसकी एक आंट होती है जो उसकी मदर के साथ टॉकिंग कर रही थी, और जो थी वो साउथ स्ट्रीट से आई थी। जो फिर वो आंट के बारे में बता रहा है कि जो आंट थी वो क्या थी, चैटर बॉक्स थी। अब चैटर बॉक्स वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, यू हैव रेड अबाउट दिस वर्ड इन योर चैप्टर एंड फ्रैंक, है ना। और वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। तो वो आंट वल्ली को देख के भी कहती है, एंड वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी अभी तक। सी स्पोक वेरी कैजुअली, वो नॉर्मली बोली, उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वल्ली कुछ आंसर भी करेगी। सो वल्ली ने जस्ट स्माइल किया और उसकी माँ और वो आंट बातों में लगी रही। यस यू आर राइट, हर मदर सैड, सो मैनी थिंग्स इन आवर माइडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि इस वर्ल्ड में और हमारे बीच भी कितनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, है ना, हमें तो पता ही नहीं चलता। वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, कहते कि हमें हर चीज़ का पता थोड़ी हो सकता है। तो वल्ली इस बात में बोलती है, ओ यस, हाँ ऐसा ही है कि आपको ज़रूरी थोड़ी सब बातों का पता हो, क्योंकि वो तो अपनी ही बात छुपा रही थी कि वो बस से ट्रैवल करके आई है। व्हाट, आस्क्ड हर मदर, व्हाट इज़ दैट यू से, कि तुमने क्या कहा। तो वल्ली क्या कहती है, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला रही थी। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सीज, ये जो लड़की है बहुत बोलती है। एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन, पोक हर नोज मीन्स बड़ों की बातों में इंटरफेयर करना, बिल्कुल ज़्यादा इंटरेस्ट लेना। तो कहती है कि देखो कैसे हमारी बातों में वो बीच में आ रही है। जस्ट एज दो सी वर ए ग्रोन लेडी, जैसे वो कोई बड़ी लेडी हो। Welly smiled to herself. She did not want them to understand her smile. तो वैली के मुँह पे स्माइल आई, क्योंकि वो बड़ी तो हो ही गई थी, है ना, क्योंकि वो एक मैडम बन चुकी थी, सबने उसे मैडम कहा था। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, तो वो किसी को बता नहीं सकती थी, है ना, किसी से भी वो अपनी बात शेयर नहीं करना चाहती थी। तो स्टूडेंट, दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट अ गर्ल वल्ली. She is only 8 years old and how she rides her first bus
And what did she see in her that journey? This is all about this chapter. I hope you all have understood the chapter. Thank you, students.